الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں یا کہ حل کے بعد اللہ آئے تو حل کا منع نہیں کرو. وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سایوں میں اور فرشتے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. دوبارہ لکھو. وہ نہیں انتظار کرتے ہیں. حل کے بعد اگر اللہ آتا ہے حل کا معنی نہیں کرنا ہے. یاد رکھ لو، قاعدہ یاد رکھ لو. حل کے بعد اگر اللہ آئے تو حل کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں. ہاں، حل کا اصل معنی کیا ہے؟ کیا کیا ہاں، تو حل کے بعد اللہ ہے نا، حل ينظرون الا، تو حل کا معنی نہیں کرو. ٹھیک ہے، دیکھو معنی لکھو. وہ نہیں انتظار کرتے ہیں لکھیے پھر. وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر کہ آئے ان کے پاس اللہ لکھیے پھر. کیا لکھے سناؤ. وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سایوں میں لکھے جی سر. اور فرشتے اور فرشتے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. اور فرشتے اور معاملے کا اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. سناؤ ترجمہ کیا لکھیں. وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سایوں میں اور فرشتے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. ہاں، تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 210 ہے. اس آیت میں کفار کو دھمکی دی گئی کہ کفار جو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو وہ گویا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ ان کے فیصلے کے لیے آئے گا اور وہاں فرشتے بھی ہوں گے اور وہاں ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. صرف تو پھر سے یہاں بولیے کفار کو دھمکی دی گئی. یہ آیت، اس آیت میں کفار کو دھمکی دی گئی ہے جی کہ لکھیے پھر. قیامت کے روز یا قیامت ان کے کے روز معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. تو بس اتنے سمجھو. یہاں پر دیکھو، نوٹ لکھو. اس آیت سے معلوم ہوا لکھیے پھر. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اتیان، الف تا یا الف نون، اتیان یعنی آنا اللہ کی صفت ہے. سمجھے؟ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اتیان یعنی آنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. سمجھے؟ یاتیا، یاتیا سے معلوم ہوا کہ اللہ کی صفت ہے آنا. ٹھیک ہے. وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر ایک کہ آئے، وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر ایک کہ آئے ان کے پاس اللہ. گویا آنا اللہ کی صفت ہے. سمجھ گئے؟ جی سے
यहाँ पर जो अल्लाह के आने का जिक्र है, ये क़यामत के दिन का, मैदान महशर में। तो मैदान महशर में अल्लाह आकर अपने बंदों के दरमियान फैसला करेगा। हो गई बात। दूसरी आयत जी। देखो, हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, वो नहीं इंतजार करते हैं मगर ये कि आए उनके पास फरिश्ते, और याती रब्बुक, या तेरा रब आए, शेख फिर और से बोलिए। या बाज आयात रब्बिक, या तेरे रब की बाज आयतें आए। लिख दे तर्जुमा, वो नहीं इंतजार करते हैं वो नहीं इंतजार करते हैं मगर एक कि आए उनके पास फरिश्ते। फरिश्ते क्यों आएंगे? रूह कब्ज करने के लिए। वो नहीं इंतजार करते हैं कि मगर एक कि आए उनके पास फरिश्ते, यानी रूह कब्ज करने के लिए, या तेरे रब, या तेरा रब आए, तेरा रब आए क़यामत के रोज फैसला करने के लिए, या या तेरे रब की बाज आयतें आए। यानी यहाँ इससे मुराद क्या है कि मगरिब से सूरज का तुलू होना, मगरिब से सूरज का तुलू होना। क़यामत तेरे की रब बड़ी निशानियां 10 हैं। इन 10 निशानियों में एक निशानी है कि सूरज कहाँ से तुलू होता है, मशरिक से या मगरिब से? मगरिब से। अभी कहाँ से तुलू होता है? मशरिक से तुलू होता है शेख, क़यामत के दिन। क़यामत के करीब मगरिब से तुलू होगा। जी। जैसे सूरज मगरिब से तुलू होगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जी। कुफार मक्का को इसमें भी धमकी दी जा रही है कि ये उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि फरिश्ते उनके पास रूह कब्ज करने के लिए न आ जाएं, या एक कि अल्लाह मैदान महशर में उनको उनके दरमियान फैसला करने के लिए आए, या एक कि तेरे रब की बाद निशानियां आ जाए, यानी सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। समझ गए? इसमें भी अल्लाह के लिए या अतिया है, या अतिया रब्बुक, तेरा रब आए। नोट लिखो, इस आयत से भी मालूम हुआ अल्लाह ताला की सिफात की एक सिफत इत्यान, यानी आना है। ठीक है? अल्लाह ताला की एक सिफत इत्यान, अलिफ ता या अलिफ नून, यानी आना है। बराबर? फिर से। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, हरगिज नहीं, जब जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, जब जमीन कूट दी जाएगी, खूब कूट दिया जाना मतलब जब जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, और आएगा तेरा रब, और फरिश्ते भी आएंगे सब बांध कर। आना लिखे, हरगिज नहीं, जब जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, और और आएगा तेरा फरिश्ते रब, भी आएंगे, और फरिश्ते भी और आएंगे। फरिश्ते भी आएंगे सब बस्ता, सफे बांध कर। मुफस्सिरीन ने लिखे हैं कि हर आसमान वालों का एक सफ होगा। ऐसे फरिश्तों की 7 सफे होंगी जो पूरे मखलूक को घेरे में ले लेंगी। फरिश्तों की कितनी? 7 सफे होंगी जो पूरे 7 आसमान के 7 सफे और मखलूक को घेरे में ले लेंगे। अहले इल्म ने यार लिखा। देखो, या ये अहले इल्म ने लिखा है। अहले इल्म ने लिखा है कि हर आसमान वाले, हर आसमान के फरिश्तों की एक सफ होगी। इस तरह से फरिश्तों की 7 सफे होंगी, 7, जो पूरे मखलूक को अपने घेरे में ले लेंगे। ठीक है? यहाँ पर बताओ अल्लाह ताला की क्या सिफत है इस आयत में? इसमें से अब जो आयत पर है इसमें अल्लाह की क्या सिफत है, अल्लाह के बारे में क्या कहा गया?
कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल को मलकु रेजा सफ़्फ़न रेजा कर सफ़्फ़ा। देगा, रेजा कर दिया। अल्लाह जमीन को रेजा रेजा कर देगा। एक एक बोलो बोलो। अल्लाह जमीन को रेजा रेजा कर देगा। नहीं नहीं, वो समझ नहीं है। अल्लाह के साथ क्या क्या लफ्ज है? अल्लाह के साथ क्या लफ्ज है? बोलो, पढ़ो, अरबी में पढ़ो, आयत पढ़ो। कौन सी है शेख? कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़ा सफ़्फ़ा। तो रब्बु के साथ क्या लफ्ज है? मलकु फरिश्ते हम्म, क्या है? वल मलकु नहीं जी, रब्बु का के साथ क्या फेल है? वजाअ आए, अल्लाह जा, आएगा। तो आएगा, तो जा, ये अल्लाह की सिफत है। ऊपर आया यातिया, ऊपर यातिया आया, यहाँ जा आया। यातिया का माना भी आना, जा का माना भी आना। तो गोया आना अल्लाह ताला की सिफत है। समझ गए? यातिया का माना, यातिया का माना आना, और जा का माना भी आना। तो आना आना ये अल्लाह ताला की सिफत है। जी। तो शेख वो गया इस अहले आयत से मालूम हुआ अल्लाह ताला की सिफात में जो सिफत जा है, यानी आना। ठीक है। शेख अहले इल्म ने लिखा था, वो आप आदत कीजिए कि हर आसमान के फरिश्ते की एक सिफत होगी, वो सब ऊपर जो होगी। लिखा है, अहले इल्म का कहना है हर आसमान के फरिश्तों की एक सफ होगी। इस तरह से 7 आसमानों के फरिश्तों की 7 सफ़ें होंगी, और ये मैदान महशर में पूरे मखलूक को घेर लेंगे। हो गया। जी सर। उसके बाद वयौम तशक्ककु समाउ बिल गमाम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। और जिस दिन आसमान बादलों से फट पड़ेगा, और जिस दिन आसमान बादलों से फट पड़ेगा, कट कट पड़ेगा। फट फट पड़ेगा, फटना। लिखे थे। और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, नाजिल किया जाना। और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे। हाँ। उसके बाद आयत क्या है बोलो? वक़ौलिही वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वो नहीं, इसी इसमें नहीं आया था आगे। वयौम वयौम तशक़्क़ुस समाउ बिल गमामी व नुज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। के बाद उसके बाद वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नहीं नहीं, नहीं, किताब किताब है ये। कुरान में क्या है, किताब याद है? की कुरान में याद है किसी को? कुरान में क्या है? एक मिनट में देखता हूँ। सूरह फुरकान, आयत नंबर आयत नंबर 36। 80। इस आयत में, इसमें इसका मफहूम यह है जिस दिन आसमान फट पड़ेगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे तो तेरा रब फैसला के लिए आएगा। आगे इसका मफहूम यही है कि इससे भी मुराद यही है अल्लाह के लिए आना है। देखो इन इन आयात में अल्लाह के लिए यातिया और जा, ये दो सिफत साबित किए गए हैं। और इत्यान और मजी, इत्यान का माने आना, जा का मजदर है अल मजी,
इत्यान और मजीद का माना एक है आना, यानी अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत आना है। समझ गए? समझ? नहीं समझ, नहीं समझ में आ रहा है। अल्लाह देखो, जा का माने क्या? वो हो गया ना शेख, अभी किया चलेगा। यौमा मेरी बात तशक्ककु। सुनो। ये जो आयत है, जिस रोज आसमान बादलों के साथ फट पड़ेगा और जी, फरिश्ते नाजिल किए नाजिल जाएंगे। किए जाएंगे। निकलिए, इस आयत का लिखिए शेख। मफहूम ये है कि उस रोज अल्लाह ताला फैसला के लिए आएगा। उस आयत का मफहूम ये है, उस रोज अल्लाह ताला फैसला के लिए आएगा। तो लिखो, लिखो, आप बताता हूँ। इन आयात में, इन आयात लिखिए। से क्या लिखे? आयात से अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की सिफत सिफतें, इत्यान इत्यान, और मजी, मदी, मजी मीम जीम या यहाँ पर हमजा, अल्लाह ताला की सिफत इत्यान और मजी का जिक्र है। क्या लिखे सुनाओ? इन आयत में अल्लाह ताला की सिफतें इत्यान और मजी का जिक्र है। इत्यान और मजी का माना आना। इत्यान और मजी का माना आना। लिखिए शेख। ठीक है? इत्यान और मजी का माना आना। आना। और समझ देखिए गए? अल्लाह तो गया आना, ये अल्लाह ताला की सिफत है। उस पर लिखो, सिफात का इनकार, मुनकिरीन सिफात, क्या लिखना मुनकिरीन शेख? सिफात इस सिफत का इनकार करते हैं। तो मुनकिरीन सिफात इस सिफत का इनकार करते हैं और अल्लाह के आने को, अल्लाह के आने का माना करते हैं अल्लाह का हुक्म का आना। अल्लाह के आने का माना करते हैं। हाँ, अल्लाह के आने का माना करते हैं अल्लाह के हुक्म का आना। अल्लाह का जो आना है, कहते नहीं अल्लाह नहीं आएगा, उसका हुक्म आएगा। ये मुनकिरीन सिफात का कहना है। तो समझ गए? तो गोया अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि अल्लाह की सिफत आना है, वो आता है। कहाँ आएगा? मैदान महशर में आएगा फैसला के लिए। लेकिन जो सिफात का इनकार करते हैं वो कहते हैं नहीं, अल्लाह नहीं आएगा, अल्लाह का हुक्म आएगा। अच्छा, समझ गए समझ शेख। रहे? जी। हाँ। यहाँ पर बात देखो, जब हम देखेंगे हमारा माबूद आएगा, तो उसका मतलब क्या है? वो हई है। अब देखो, जो कुफार जिन मूर्तियों की इबादत करते हैं, और तो मूर्ति है बेजान, और चीज कोई आएंगे? तो गया जो माबूद है वो आएगा, मतलब वो जानदार है। वरना ये लोग जो मूर्ति वूर्ति के मुजस्समे की इबादत करते हैं, या ना वो आएंगे, न कोई चीज नफा दे सकते, नुकसान पहुंचा सकते। तो गया आना, ये अल्लाह की सिफत है। इससे मतलब यह है कि अल्लाह ताला के लिए सिफत हयात है। हमारा जो माबूद है वो हई है और कय्यूम है। ठीक है? तो असल में अल्लाह ताला के इन आयात में एक एक सिफत का तज़किरा किया जा रहा है। अब इसके बाद जो सिफत है उसका है वज। वज का माना क्या है? वजुन का माना क्या? चेहरा। चेहरा। उसके बाद है यदैन। यदैन का माना क्या है? हाथ। हाथ। उसके बाद है आइनैन। आइनैन का आंखें। माना क्या है? आंखें। आंखें। तो इसके बाद की आयतों में अल्लाह ताला के लिए चेहरा, अल्लाह ताला के लिए हाथ और अल्लाह ताला के लिए आंख,
اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اور اس کی دو ہاتھیں ہیں اور اس کی دو آنکھیں ہیں. یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس کی دو اس کے دو ہاتھ ہیں اور اس کی دو آنکھیں ہیں. لیکن اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں، دونوں آنکھیں کیسے ہیں، اس کا علم ہم کو نہیں ہے. یہ اللہ کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے آنکھیں ویسے ہی ہیں جیسے کہ اس کی ذات ہے. سمجھ گئے؟ جی کیا بولو؟ اللہ کا چہرہ بولو. اللہ کا چہرہ، دو ہاتھ ہے، دو آنکھیں ہیں. ہے مگر یہ کیسے ہیں؟ کیا مخلوق کے جیسے ہیں؟ نہیں، اس کی ذات ہے. ہاں، جیسے اس کی ذات ہے، اس کی ذات کے شایہ نشان لکھو. اللہ کا چہرہ ہے، اس کے دو ہاتھیں ہیں اور اس کی دو آنکھیں ہیں، اور یہ چہرہ، دو ہاتھ اور دو آنکھیں اس کے شایان شان ہیں، مخلوق کے جیسے نہیں ہیں. سمجھے؟ جی ہاں. کل کے درس میں انشاءاللہ ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے. چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں آنکھ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلو اسے بالکل. سلام.